नमस्कार आप सभी लोगों का। मैं रणधीर कुमार गौतम, गांधीयन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म आईटीएम यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सबों का गांधीयन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म फोरम के 8वीं विचार श्रृंखला के अध्याय में आपका स्वागत करता हूं। खासकर मुझे स्वागत करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच गांधी विमर्श के 2 प्रमुख हस्ताक्षर जुड़े हैं। आज के चेयर प्रोफेसर आनंद कुमार, जीएसटीएस फोरम के मार्गदर्शक और भारत के जाने माने शिक्षाविद। हम स्वागत करते हैं आज के मुख्य वक्ता श्रद्धेय प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जी का। आप भारत के जाने माने शिक्षाविद, शांति कार्यकर्ता, राजनीतिक वैज्ञानिक एवं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित नागरिक हैं। आप सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पूर्व कुलपति भी रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विवेकानंद जैसे चिंतकों का प्रभाव आपके शोध कार्यों में रहा है। आप वर्तमान में ग्लोबल पीस इंटरनेशनल जर्नल के प्रधान संपादक हैं और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विषयों पर लगातार लिखते आ रहे हैं। लगभग सैकड़ों लेख, व्याख्यान, वार्ताएं में आप भाग लेते रहे हैं, देश से लेके विदेश तक। आपका लेखन और गांधी दर्शन को जन जागरण तक पहुंचाने में आपकी साधना और समर्पण को हम प्रणाम करते हैं। एक संक्षिप्त टिप्पणी जीएसटीएस फोरम के लिए। आप जीएसटीएस फोरम एक विचार विमर्श और मंथन का एक आग्रह है, जहां हम स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व के विचार को समाज में खोजने का प्रयास कर रहे हैं और जो सामाजिक चिंतन हमारे क्रांतिकारी विचारकों ने दिया है उसको जन जागरण तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हर शुक्रवार को हम महान विचारकों, विद्या साधकों को आमंत्रित करते हैं और इसी क्रम में आज के विचार मंथन का विषय गांधी और सनातन धर्म रखा गया है। गांधी अपने आप को बड़े विनम्रता के साथ सनातनी हिंदू कहकर बुलाते थे और आज के गोष्ठी में हम गांधी और सनातन धर्म के बीच के सहसंबंध को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर आनंद कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि आज के विषय की भूमिका को रखते हुए अपना विचार व्यक्त करें। जी प्रोफेसर आनंद कुमार। बहुत धन्यवाद। I am joining my friend Randhir Gautam in welcoming one of the most eminent scholars of the Gandhian discourse, Professor Ravindra Kumar ji, who needs no introduction as he has been one of the leading lights of higher education in India and a celebrated vice chancellor of a large state like Uttar Pradesh at Chaudhry Charan Singh University of Meerut. This is a very interesting time to talk about both Sanatan Dharma and Gandhi, because both are being interrogated. Religion has come back despite the global wave of consumerist globalization, and religion is defining identities beyond nationalities
and ethnicities, because the idea of nation state and the political frontiers dividing humanity into countries, they all have become marginally insignificant. You know about European Union, which was the home base of two world wars, Yes. which was the space where crusades took place. It was the zone where Christianity was interrogated by people like Martin Luther. But today, European Union is a new regional identity and nationalities have dissolved. But for football competitions, nobody remembers essentiality of a Dutch or a German or a French or a British man or woman. There is also return of nationalism, as it was evident in the exit taken by British people through Brexit. Britain was one of the messengers of Western civilization for 3 centuries. It occupied much of the world, including India and a lot of African states of today, for a long time, with the promise of civilizing us and making us international, making us scientific, rational, humanist, liberal. But today, Britain itself is going back to shelters of identity and national frame. So Gandhi was a patriot par excellence, but he was not a narrow nationalist. Yes. His nationalism was contrasted with nationalism of Hitler and Mussolini on the one hand, and Jinnah and Savarkar on the other hand. He was aware of the limits of ethnic nationality, exclusive nationality, and he was convinced about the emerging horizon where nation and religion both will be synonymous in terms of human imperative. He was cultivating humanism through a very specific way, and that was called 11 vows. His religion was concrete and specific. He urged his fellow countrymen and women to practice 11 principles which were permitted and promoted by all major religions, including Hinduism, Islam, Christianity, Judaism, and all other faith systems, where it was to be truthful, to be kind, that is non-violence, to be compassionate, that was karuna, then not to attach too much with material aspects of life, aparigraha, not to be afraid of others, that was abhay. And then, of course, he added a few principles which were suitable and demanding for Indian situation, like Sarva Dharma Sambhav, respect for all religion, Asprishita Nivaran, that is going beyond the sin of untouchability, dignity of women, pursuit of the super truth, that was Brahmacharya. So Gandhi, the way he lived, inspired millions of people, and there were Gandhis all over the country. There were Gandhis at the local level, Gandhis at the district level, Gandhis at the state level. And after his assassination in 1948, we were surprised that now there was spreading of the Gandhian format, Gandhian way of living and leading all over the world. Martin Luther King in the United States of America, Dr. Nelson Mandela in South Africa, Khan Abdul Ghaffar Khan in Pakistan, Afghanistan, Dalai Lama in Tibet. So I think that all of us will be enlightened today by looking at Gandhi through the understanding and eyes of Professor Ravindra Kumar. On the other hand, Sanatan Dharma is again a very attractive and kind of puzzling notion, because Sanatan means eternal, beyond time and space. Absolutely. What is Sanatan? Truth is Sanatan. Energy is Sanatan. Sun and moon are not Sanatan. We are told that sun began one day and will diminish another day. Yes. Nature will keep on changing. So Sanatan is ever evolving, ever changing, Nitya Nutan, Yes. and at the same time eternal. It's like flow of rivers. They start from one point, end at another point, and in between we are
blessed by these rivers in the form of agricultural support, civilizational trajectories, trade and commerce, flow of culture, growth of populations. So Sanatan is something which was attached by Gandhi to the idea of being a Hindu, and it was a pre-Gandhian notion. Sanatan Dharma was contrasted with Arya Samaj. It was contrasted with various caste-based associations and movements, and it was also separated from political form of Hinduism. So Sanatan Hindu is a category which made Gandhi acceptable by the larger people of India, but it also made him a friend and fellow traveler in other religious traditions, like Quakers in America, in Christianity, are very close to the Gandhian notion of religion, which is non-sectarian, which is practice-based, and which is ethics-based. In Islam, there is great Sufi tradition, which is a meeting point. Like ocean is meeting point of several rivers, Sufi tradition in Islam is a meeting point of all the best traditions, best norms, best practices in most of the religions, particularly Islam and Hinduism. So friends, today is an exciting evening. I'm so happy that Randhir and Global Gandhian School for Democracy and Socialism have been successful in getting the time of Professor Ravindra Kumarji. And I think it will be not first and the last engagement of Ravindji. We hope to have him again and again. And that will be evident when you hear him. I welcome again my friend and a very respected scholar, Ravindra Kumarji. And I welcome you all. I saw that in the audience, there is a scholar from Italy. There are a number of scholars from South India. There are scholars, of course, from various universities and institutions. So I don't know how Ravindraji will manage the linguistic plurality of today, but challenging task. out of this, that he speaks mostly in Hindi. Otherwise, Meerut will revolt. They'll say, हमारे गुरुजी को आज क्या हो गया, ये अंग्रेजों के भाषा क्यों बोलते हैं? थोड़ा भी बोलेंगे, so then there will be justice and fair play with scholars from non-Hindi background. Thank you so much, and thank you again, Ravindra Bhai, to give us time, and we want to hear you now. Professor Ravindra Kumar ji. Respected Professor Anand Kumar ji, my young friend and the chief organizer of today's event, Randhir ji, I am grateful to your school for inviting me to have a dialogue on a very important topic, Mahatma Gandhi and the Sanatana Dharma. This is, in fact, a theme to be understood fairly, without any prejudice. And in today's perspective, although Professor Anand Kumar ji had already in brief enlightened well about the perspective, but as you have accorded me an opportunity to express my views as well, so let me say in context of the theme. लेकिन जैसा कि रणधीर जी ने इच्छा व्यक्त की थी, मैं अपनी बात हिंदी में रखूंगा और बाद में अपने मैं व्याख्यान का जो इंग्लिश वर्जन है वो आपको दूंगा, आप उसका समुचित उपयोग कर सकते हैं। महात्मा गांधी का सनातन परिप्रेक्ष्य, सनातन धर्म परिप्रेक्ष्य, मैं इसका प्रारंभ स्वयं महात्मा गांधी के एक बहुत ही प्रसिद्ध
और लघु वक्तव्य से करना चाहूंगा। गांधी जी कहते हैं कि मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, ईश्वर सदाचार और नैतिकता है, ईश्वर निर्भयता है, ईश्वर प्रकाश और जीवन स्रोत है, और साथ ही वह इन सब से ऊपर और परे भी है। ईश्वर अंतरात्मा का स्वर या चेतना है, वह नास्तिक के लिए नास्तिकता भी है, क्योंकि ईश्वर अपने असीम प्रेम में नास्तिक को भी जीने की अनुमति देता है। वह हृदयों का खोज करता है, उसने उक्ति और तर्क को पार किया है। वह हमें और हमारे हृदयों को निश्चित रूप से हमसे श्रेष्ठ जानता है। अविभाज्य समग्रता, इंडिविजिबल होल, और उसकी सत्यता में अटूट विश्वास करता और उसी एकमात्र सत्ता की परिधि में स्थापित अथवा विद्यमान सार्वभौमिक एकता, यूनिवर्सल यूनिटी की वास्तविकता को स्वीकार करता महात्मा गांधी का उक्त लघु वक्तव्य जो मैंने अभी कोट किया है, निसंदेह सदा स्थापित शाश्वत सनातन हिंदू धर्म के, जो बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से अपनी परिधि में समेटता है, प्रथम और द्वितीय दोनों मूल आधारों का प्रकटीकरण है। यानी दो मूल आधार हैं, अविभाज्य समग्रता, इंडिविजिबल होल, और यूनिवर्सल यूनिटी। यह लघु वक्तव्य उन्हीं दोनों अविभाज्य समग्रता और सार्वभौमिक एकता को अंततः समर्पित है। एक ही अविभाज्य समग्रता सार्वभौमिक एकता का निर्माण करती है। दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड में सब कुछ चल अचल उसी अविभाज्य समग्रता की परिधि में है। कुछ भी और कोई भी उसकी सत्ता, सर्वोच्चता और सर्वव्यापकता से बाहर नहीं है। सनातन हिंदू धर्म का यही प्रथम व मूल सिद्धांत है। सनातन हिंदू धर्म में सार्वभौमिक एकता निर्माणकर्त्री, सर्वव्याप और सर्वशक्तिमान अविभाज्य समग्रता के लिए परब्रह्म, ब्रह्म सहित असंख्य नाम प्रकट होते हैं। वेदों में और उपनिषदों में वह परम सत्ता अपने भिन्न भिन्न गुणों और सार्वभौमिक व्यवस्था के संचालनार्थ नियमबद्ध कार्यों के लिए पृथक पृथक नामों से संबोधित है। परमेश्वर, प्रभु, परमात्मा, दाता, ईश्वर आदि नाम उस सर्वव्याप, सदा विद्यमान और सर्वशक्तिशाली परम सत्ता के लिए ही है। सनातन हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों, विशेषकर ऋग्वेद और ऋग्वेद के मंत्र 1:164-46 में प्रकट है। इंद्रम मित्रम वरुणम मिग्र माहुरथो दिव्य से सुपर्णो गुरुत्मा, जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म इंद्र यानी परमेश्वरशाली, परम वैभवशाली मित्र जो सबके लिए मित्रवत, वरुणम श्रेष्ठतम, अग्निम यानी अग्रणी, दिव्यम यानी परम प्रकाशमान और ज्योति स्वरूप, सुपर्ण यानी पालन करता, गुरुत्वमान यानी ब्रह्मांड धारक और सर्वनियंता आदि है। और उसी प्रकार ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद के प्रारंभिक मंत्र पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात वह पूर्ण है, अनंत है। वह ब्रह्मांड, यह ब्रह्मांड भी पूर्णतः और अनंत है, पूर्ण से पूर्ण निष्पन्न होता है तथा पूर्ण में से पूर्ण के बहिर्गत हो जाने के बाद भी, यानी पूर्ण में से उसको निकाल लेने के बाद भी अंततः पूर्ण ही शेष रहता है। इस संबंध में पूर्णतः स्पष्ट करते हैं हमारे सामने स्थिति। महात्मा गांधी ने ईश्वर को सत्य स्वीकारा है। सत्य अर्थात सत्तावान, सदा विद्यमान, स्थायी, परम लक्ष्य जो तर्क और खोज से परे है। ईश्वर महात्मा गांधी ने स्वीकार किया है कि प्रकाश और जीवन का स्रोत है, सर्वोच्च और सर्वज्ञ है, सबके स्वामी हैं। उनके भी, जैसा कि मैंने कोट किया है, जो नास्तिक हैं वे सभी के जीवनदाता हैं,
पोषक हैं और संरक्षक हैं। महात्मा गांधी ने ईश्वर को असीम प्रेम करता यानी प्रेम का महासागर स्वीकारा है। यह प्रभु का वह महागुण है जो वास्तव में सर्व एकता का आधार है, जगत कल्याण का माध्यम अथवा मार्ग है। इसलिए मनुष्य की जगत कल्याण भावना और कार्यों को उसकी सत्य के प्रति दृढ़ता के साथ भी संबद्ध करके देखा जाता है। सनातन धर्म के दो मूल आधारों अविभाज्य समग्रता और सार्वभौमिक एकता में, जैसा कि हमने उल्लेख किया है, महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था। ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में ईश्वर द्वारा सार्वभौमिक एकता के निर्माण को वो स्वीकार करते थे और परमात्मा को ही परम सत्य मानते थे। महात्मा गांधी जगत नियंता व संचालक के रूप में ईश्वरीय व्यवस्था, नियम की शाश्वतता में भी पूर्ण विश्वास करते थे। उन्होंने ईश्वर और उनके सार्वभौमिक नियम की अटूट संबद्धता के पक्ष को सजातियों के समक्ष रखा। परम सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार अथवा प्रभु की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य घोषित करके जगत कल्याण के लिए, जिसमें स्वयं का कल्याण भी सम्मिलित है, आवश्यक रूप से सम्मिलित है, इस दिशा में उनके समर्पण का सजातियों का यानी फेलो बीइंग्स का आह्वान था। इस दिशा में जीवन मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सर्वोच्च मानवीय मूल्य अहिंसा को सदैव ही कर्मों में रखने का भी उनका आह्वान था। सर्वोच्च स्वाभाविक और शाश्वत मूल्य अहिंसा, परस्परोपग्रह जीवानाम, जीवन की एक दूसरे पर आश्रितता और जीवन के परस्पर में ही उपकार की सत्यता की अनुभूति, तदनुसार व्यवहार और आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात समस्त प्राणियों को स्वयं के ही समान स्वीकारने की अपेक्षा और इसकी सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम, मार्ग अथवा साधन। अपनी मूल भावना के अनुसार अहिंसा संक्षेप में प्राणी मात्र के प्रति सक्रिय सद्भावना है। साथ ही प्रकृति, पर्यावरण आदि के साथ भी वृहद सृष्टि कल्याण के दृढ़ निश्चय के साथ मित्रवत व्यवहार करने में है। यह प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ और उसके अन्यायी दोहन न करने, साथ ही पर्यावरण को असंतुलित और प्रदूषित न करने में भी है। प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन मानव द्वारा समुचित अहिंसा पालन की शर्तों में सम्मिलित है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के चतुर्थ मंत्र में अध्वरम हिंसा दोष से रक्षा की प्रार्थना है। यही प्रार्थना वह मूल कड़ी है जो हिंसा को महादोष और इसके विपरीत अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट और सर्वकालिक मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करती है। इस प्रकार मूलतः ऋग्वेद से हिंसा के विपरीत स्थिति के रूप में प्रकट अहिंसा सनातन हिंदू धर्म के अन्य आधारभूत ग्रंथों में सर्व कल्याणकारी और सदा अनुकरणीय सर्वोच्च मानवीय मूल्य के रूप में व्याख्यायित और विश्लेषित हुई है। यह अंततः सनातन हिंदू धर्म के तृतीय मूल आधार के रूप में निरंतर स्थापित हुई है। उन आधारभूत ग्रंथों में वृहद कल्याण को केंद्र में रखकर व्यक्तिगत और परस्पर व्यवहारों में अहिंसा के पालन के लिए दिशा निर्देश भी उल्लिखित हुए हैं। सनातन धर्म के अग्रणियों, अवतारों, ऋषियों, महर्षियों और धर्म गुरुओं ने प्राणी मात्र के प्रति सक्रिय सद्भावना और सृष्टि इसमें विद्यमान सभी तत्वों आदि के साथ मित्रवत रहते हुए अपने जीवन और कार्यों और व्यवहारों के माध्यम से अहिंसा के पालन के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। उन उदाहरणों की प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है। आज के जो संसार की स्थिति है, मैं समझता हूं कि उसमें तो और भी अधिक उसमें वृद्धि हुई है। सार्वभौमिक एकता की सत्यता की अनुभूति, सर्व कल्याण में ही स्वयं के कल्याण की वास्तविकता से साक्षात्कार, तदनुसार कर्मों हेतु अहिंसा पालन की अपरिहार्यता और के दृष्टिकोण से इसकी कभी भी महत्ता कम नहीं होगी, उत्तरोत्तर भविष्य में बढ़ती जाएगी। लेकिन सर्वोच्च मानवीय मूल्य अहिंसा की अनुभूति, इसकी सर्वकालिक महत्ता और जीवन व्यवहारों में इसके बल पर सार्वभौमिक एकता
को एक समकालीन आधुनिक महापुरुष के रूप में महात्मा गांधी ने जिस प्रकार अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया, वह अपने आप में उपलब्ध मानव इतिहास की एक अद्वितीय घटना थी। आधुनिक काल या समकालीन नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, आनंद कुमार जी ने बहुत सारे नाम लिए, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, वियतनाम के बौद्ध, अनेक ऐसे उदाहरण हैं। फिलीपींस के एक्विनो इस पूरी महत्ता को प्रकट करते हैं। जीवन के समस्त क्षेत्रों के एक दूसरे पर अपरिहार्य प्रभाव, दूसरे शब्दों में सभी क्षेत्रों की एक दूसरे पर निर्भरता। इस प्रकार उनकी अविभाज्यता की वास्तविकता को केंद्र में रखते हुए महात्मा गांधी अहिंसा को राजनीतिक क्षेत्र में लाए। धर्म, समाज और राजनीति की एक दूसरे के साथ संबद्धता की सत्यता को उन्होंने स्वीकार किया। देश काल की परिस्थितियों की मांग के अनुसार अहिंसा को उसकी मूल भावना में क्षुण्ण रखते हुए आवश्यक परिमार्जन के साथ राजनीतिक क्षेत्र में इसके बल पर उन्होंने प्रभावकारी प्रयोग किए। हम सब इस सत्यता को जानते हैं और प्रयोगों से उन्हें अपने जीवन काल में ही आशातीत सफलताएं प्राप्त हुई। महात्मा गांधी के प्रयोगों से प्रेरित विश्व भर के अनेक जननायक भी, जिनमें से कुछ का मैंने नाम लिया है, अपने अपने देशों में संबंधित प्रयोगों में सफल हुए। हम ये पुनः दोहरा सकते हैं कि संपूर्ण मानव इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इससे जीवन के समस्त क्षेत्रों की अपरिहार्य संबद्धता, एकता की सत्यता सामने आई। साथ ही सर्वोच्च मानवीय मूल्य के रूप में अहिंसा की सर्वकालिक उपादेयता भी प्रकट हुई। महात्मा गांधी ने सनातन हिंदू धर्म के तृतीय मूल आधार अहिंसा को इसकी मूल भावना के अनुरूप एक अति श्रेष्ठ व्यवहारिक आयाम देते हुए इसके आधार पर स्वयं की सनातन धर्म से संबद्धता को सिद्ध किया, अपने आप को एक अति श्रेष्ठ सनातन धर्मी सिद्ध किया। उन्होंने देश काल की परिस्थितियों की मांग के अनुसार अहिंसा को इसकी मूल भावना के साथ अविकल रखते हुए और इसको फिर प्रयोगों में लाकर सनातन हिंदू धर्म के चौथे मूल आधार नूत नैरुत यानी नित नवीन ऋग्वेद प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त, दूसरा मंत्र को दृढ़ इच्छा के साथ अंगीकार किया। नूत नैरुत की मूल भावना के अनुरूप महात्मा गांधी के वैचारिक दृष्टिकोण को उनके उस उल्लेख के माध्यम से भी आज भी हमको समझना चाहिए, आज भी हमको जानना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं उसको उद्धृत करता हूं, मैं उसको कोट करता हूं। सत्य की अपनी खोज में मैंने बहुत सारे विचारों को छोड़ा है और अनेक नई बातें भी मैं सीखा हूं। आयु में मैं भले ही वृद्ध हो गया हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा आंतरिक विकास होना बंद हो गया या देह छूटने के बाद मेरा विकास बंद हो जाएगा। मुझे एक ही बात की चिंता है और वह यह कि प्रतिक्षण सत्यनारायण की वाणी का अनुसरण करने की मेरी तत्परता। इसलिए जब किसी पाठक को मेरे 2 लेखों में विरोध जैसा लगे, तब यदि उसे मेरी समझदारी में विश्वास हो तो वह एक ही विषय पर लिखे गए मेरे 2 लेखों में से मेरे बाद वाले लेख को प्रमाणभूत माने। ये हरिजन बंधु 30 अप्रैल 1933 को गांधी जी ने लिखा और गांधी जी का जो एक कलेक्शन है मेरे सपनों का भारत, उसमें भी बिल्कुल प्रारंभ में इसको और थोड़ा विस्तार से उद्धृत किया गया। इस प्रकार अविभाज्य समग्रता और सार्वभौमिक एकता की सत्यता में अटूट विश्वास, सर्वोच्च मानवीय मूल्य के रूप में अहिंसा की अनुभूति और व्यवहारों गतिविधियों में इसका आलिंगन, वह शाश्वत परिवर्तन नियम के लिए प्रतिबद्धता प्रकट कर वह इसको भी अहिंसा ही की भांति जीवन व्यवहारों में अपनाकर महात्मा गांधी ने, जैसा कि मैंने कहा, अपने आप को एक अति श्रेष्ठ सनातन धर्मी सिद्ध किया। महात्मा गांधी एक उत्कृष्ट सनातन धर्मी थे। सनातन धर्म शाश्वत व्यवस्था और वह व्यवस्था हर प्रकार के भेदभाव से बाहर निकलकर प्रत्येक जन के लिए, उसका कोई संप्रदाय हो,
उसका कोई धर्म हो, उसका कोई लिंग हो, सबसे ऊपर उठ करके अपने आप को सब में समेटती। सनातन धर्म के मूलाधारों में विश्वास करता और पालनकर्ता के रूप में महात्मा गांधी एक विश्व मानव थे, एक विश्वनाथ। उनके सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी होने की सत्यता को, सनातन धर्म के इन चारों मूल आधारों को समग्र अविभाज्य समग्रता, सार्वभौमिक एकता, सर्वोच्च मानवीय मूल्य के रूप में अहिंसा और शाश्वत परिवर्तन नियम की वास्तविकता में उनके विश्वास और व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में हमको समझना चाहिए। और आज पूरे विश्व में जो भी समस्याएं हैं, सभ्यताओं को लेकर हों, वैचारिक मतभेदों को लेकर हों, और किसी भी प्रकार से हों, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, उनका एकमात्र समाधान अथवा सर्वश्रेष्ठ समाधान महात्मा गांधी के एक सनातन धर्मी परिप्रेक्ष्य में हमको मिल सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। अति विशेष रूप से मैं आदरणीय प्रोफेसर आनंद कुमार जी का, जो मेरे बड़े भाई भी हैं। वो तो कई साल मुझे मिले हुए हो गए, हम मिले तो चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी में थे गांधी मैदान में, लेकिन मेरी भी बड़ी इच्छा थी, उनके मुझे दर्शन हुए। रणधीर बाबू, आपके माध्यम से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और जैसा उनका आदेश है, आप जब भी मुझे कहेंगे मैं हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। जो मेरी समझ है, जो मेरा दृष्टिकोण है, हमेशा मैं आपके साथ वो साझा करने में अपने को गौरवान्वित अनुभव करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। जितने यहाँ आज ज्वाइन करने वाले हैं, मैं उन सब के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपने न सिर्फ महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के आयाम पे चर्चा की, बल्कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के दृष्टि को भी हमारे साथ आपने साझा किया। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने वक्तव्य या अपने सवाल हमारे मुख्य वक्ता के साथ साझा करें। तो मैं इस कड़ी में, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर बीना सिंह हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार गिरी हैं। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर अनंत गिरी से आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार साझा करें। कुछ समय ले रहे हैं, तो प्रोफेसर बीना सिंह। एक सवाल आशुतोष जी का है। हाँ जी, बीना सिंह जी बोलिए। Greetings to all of you. This is Veena Singh from Varanasi. पहली बार आप लोग से जुड़ी हुई हूँ। प्रोफेसर आनंद कुमार को तो हमेशा सुनती रहती थी और काफी कुछ सीखा है उनसे मैंने। और आज बहुत ब्रीफली उन्होंने जो बताया अबाउट यूरोपियन और इंडियन सब कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने हाउ रिलीजन हैज बीन distorted, और जो गांधीयन आइडियोलॉजी थी, how it is relevant today, especially the kind of disintegration that we are going through, and religion has lost its real value, you know. और प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी को सुना, उन्होंने इतने अच्छे से, you really enlightened me, sir, talking about the absolute truth, that truth which Gandhi looked, and you talked about that he believed the truth and love, satya or prem, that is what God is, you know, and we are losing that today. Actually, I'm basically a student of literature, creative writer myself, and I believe in this, that love is needed, that truth is needed in order to overcome the hatred that is going around the globe and disrupting the bliss of existence today.
all the harmony is badly distorted, and that we need to bring it back. Peace for all and all for peace. Thank you, sir. It was really enlightening and inspiring to hear both of you, two great scholars, Professor Anand Kumar and Ravinji. Thank you so much. No question. I just, it was just, I was just trying to, assimilate what you were saying, and I was just trying to understand. It is my first exposure to this platform. I thank Ranjit for adding me here, and I'm looking forward to hear more and learn more. I'm still in the process of learning, Okay. And I think, yes, Gandhian ideology is needed. It is the need of the hour. Thank you. इंजीनियर घनश्याम दास गर्ग जी, आपने एक सवाल चैट बॉक्स में लिखा है जी, बताइए। पूछिए। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं घनश्याम दास गर्ग MA NIT भोपाल का इंजीनियर हूँ। HL और BHL में मैंने 37 साल काम किया है। जी। और कृष्ण के, भगवान कृष्ण के बारे में ये है कि उनके जो उपदेशों में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तो ये इनका और सनातन धर्म का क्या डिफरेंस क्या होगा, ये जानना चाहता हूँ। नहीं, अंतर कुछ नहीं है। देखिए, बात सुनिए, भगवान कृष्ण का भी मार्ग तो अल्टीमेटली यही है, साकार रूप में और निराकार रूप में जो उन्होंने दोनों अपने रूप प्रकट किए, अल्टीमेटली यही है कि हमें सब मोह माया से, हमें सब अपने आप से ऊपर उठ करके अंततः जो अविभाज्य समग्रता है उसी के साथ एसिमिलेट करना है। भगवान कृष्ण का भी संदेश यही है। और शायद आपके ये संज्ञान में हो कि महात्मा गांधी एक सनातन धर्मी के रूप में कहते थे कि जब सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने कभी आई तो मेरा पथ प्रदर्शन श्रीमद् भगवत गीता से ही हुआ, भगवान कृष्ण के संदेशों से ही हुआ। तो अंतर कुछ नहीं है, लेकिन एक अलग अलग है। जैसे हमारे अपना एक ऋग्वेद में आता है ना कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते अग्निम यमम मातृश्वान माहु। तो सत्य एक ही है, सत्यता की पहुंचने का मार्ग है। और एक परिस्थिति में भगवान राम ने एक अलग परिप्रेक्ष्य में, भगवान कृष्ण ने एक अलग परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जो मूल संदेश है, मूल संदेश यही है जी सबका कि हमको अंततः अविभाज्य समग्रता के साथ एक रूप होना है, उसको पहचान करके उसी के साथ एसिमिलेट करना। अंतर कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि अलग अलग हैं, भक्ति के माध्यम से भी, कर्म के माध्यम से भी, और कर्म में भी फिर निष्काम कर्म योग के माध्यम से भी, और ज्ञान के माध्यम से भी, मार्ग वही है। लेकिन अंततः जो उद्देश्य है, अंततः जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, दैट इज द सेम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। मिनिति प्रधान जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपना प्रश्न पूछें। Hello, am I audible? Yes, you are audible. Good evening, everyone. I thank you and Professor Anand Kumar and the chief speaker of today, Professor Ravindra Kumar, for his very insightful speech. So I'm a little bit confused. Like, Professor Anand Kumar very beautifully has explained the Sanatan Dharma, the broader perspective of Sanatan Dharma, how it is eternal truth, energy, and ever-changing nature and all this. But how it is interpreted with the common man, Sanatan Dharma is, with all its customs and religiosity. So Gandhi, of course, he untouchability and dignity of women, all these things he opposed. But how did he deal with these things like customs and religiosity? And what was his relationship with Arya Samaj? I mean, that how it was different from the two ideologies, how it were different or similar. So I want to know a little bit about this. Thank you. मैं सवाल मेरे से आनंद कुमार जी से है। मेरे से है। Yeah. दोनों से सर। नहीं, चलिए कोई मैं दे देता हूँ आनंद कुमार जी। तो खैर बात क्या है कि एक इस बात को हमको स्वीकार करना, अब मैं थोड़ा सा टाइम ले लूं आपका 1-2 मिनट। एक तो इस बात की स्वीकृति करना है कि पूरा प्राणी जगत एक ही स्रोत से निर्गत,
और एक ही स्रोत से जब निर्गत है, और उसमें भी फिर विशेष रूप से जो मानव जाति है, जो सृष्टि का एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि आज तक जो ज्ञात है, ये तो मैं मानता हूं कि खाली पृथ्वी वाली बात नहीं, जीवन तो और भी हैं, लेकिन अब हमको जो ज्ञात है आज तक, उस ज्ञात में हम मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो सर्वश्रेष्ठ और हमारे पास दो एक बहुत बड़ी चीजें हैं, हमारे पास बुद्धि है और हमारे पास रचनात्मकता है, इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी। ये मनुष्य के साथ है और इससे ही हम सभ्यता का निर्माण करते हैं, इसी से हम उन्नति के एक के बाद दूसरे शिखर पर पहुंचते हैं। तो स्थिति ये है कि उसमें फिर हमारा उत्तरदायित्व जाता है। तो प्राणी जगत सब और सारा चल अचल चराचर जो भी कहते दृश्य है तो एक स्रोत से निर्गत, लेकिन मनुष्य का उत्तरदायित्व एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में ज्यादा है। और देखिए, हम सिद्धांत रूप में सब बात मानते हैं कि ये ईश्वर के यहां से हम सब समान आए, एक ही स्रोत से निर्गत है और एक ही जगह हमको चले जाना है, उसी में समा जाना है, उसी से एक रूप हो जाना है, इसको चाहे निर्माण कहें, मोक्ष कहें, जो भी स्थिति है सब है। लेकिन उसके बाद पता है, एक सिद्धांत में बहुत बड़ी बात है, और वेदों से लेकर उपनिषदों तक, श्रीमद् भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी जी की राम, सब लोग सब और धर्म ग्रंथ भी दुनिया के और औरों के भी, वो कोई भेद नहीं। इसके बावजूद भी समानता का जो व्यवहारिक मामला है वो एक बहुत मुश्किल काम है। ये एक है दुनिया में समस्या में व्यवहारिक, आपको बात बता, सिद्धांत में ठीक है लेकिन व्यवहार में बड़ा मुश्किल है, और ये व्यवहार की जो मुश्किल है यही सारी समस्याओं का जड़ है। तो इसको हम जितना आत्मसात करते हैं और जितना हम इसको व्यवहार में लाते हैं, मैं समझता हूं कि हम उतना ही वास्तव में सनातन धर्म की मूल भावना को और सनातन धर्म का जो आह्वान है उसको स्वीकारते हैं। तो महात्मा गांधी का जो परिप्रेक्ष्य है, उन्होंने जीवन भर इस दिशा में वास्तव में काम किया है। मेरी शाम को किसी से बात हो रही थी, महात्मा गांधी के बड़े बेटे के बारे में, हरिलाल के बारे में बात हो रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी मन जिक्र किया, उन्होंने भी थोड़ा उसमें एक भाषण में उसका जिक्र किया था। गांधी जी इस सब बात से ऊपर उठ करके पारिवारिक परिप्रेक्ष्य को, जातिगत परिप्रेक्ष्य को और फिर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को, जो लोग सही जानते हैं, आनंद कुमार जी जिक्र कर रहे थे ना, तो कभी उस पर आप भाषण रखिएगा, मैंने उस पर काफी कुछ लिखा है, राष्ट्रवाद से अंतरराष्ट्रीयतावाद वाली जो बात है ग्लोबलाइजेशन की, उससे ऊपर उठ करके वो बहुत आगे बढ़े। और फिर उनका एक ही था और एक उनकी लाइन है, उसको हमें आत्मसात कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का उद्देश्य और द पर्पस ऑफ माय लाइफ, और उसका जो सेंटर है वो समानता है। और जब समानता की मैं बात करता हूं तो अवसरों की समानता की बात करता हूं। ये आत्मसात कर लेना चाहिए। ये उसी परिप्रेक्ष्य में है जो मैं बात कर रहा था, जो सनातन धर्म का मूल केंद्र है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो मैं आपका सवाल समझाऊं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, और विशेष रूप से फिर गांधी दर्शनवाद नहीं, गांधीवाद तो कुछ है नहीं, वाद तो गांधी जी ने माना, लेकिन जो गांधी मार्ग है, जो गांधी विचार है, जो गांधी परिप्रेक्ष्य है, गांधी दृष्टिकोण है, उसको हम केंद्र में रख करके जब ये बात करते हैं तो हमें इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता होती है कि वहां मानव समानता प्रथम दृष्टया और सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर वो हमारे केंद्र में रहनी चाहिए। जी बहुत धन्यवाद। एक इटली के विचारक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपना सवाल चैट बॉक्स में लिखा है, और उनका सवाल है कि इज इट पॉसिबल दैट सनातन धर्म इन गांधीज व्यूज फाइंड्स इट्स फाउंडेशन इन आदि वेदांता अद्वैत वेदांता एंड व्हिच इज वेदांता? अद्वैत अद्वैत वेदांता। ठीक है, समझ आ गई मुझे बात। हाँ, बात सुनिए, ये दिस इज गांधी
always believed Advaita Vedanta. He must be clear, my brother and my friend, whatever, the one who has raised the question. Gandhi always believed Advaita. So I don't think that we need to explain, but Gandhi seat, a permanent seat or an abode of Gandhian views already reside in the Advaita Vedanta. And the same Advaita Vedanta which has been expanded by Adi Shankaracharya. एक आशुतोष जी हैं, उनका सवाल है कि गांधी जी अपने धर्म में जब राम की चर्चा करते हैं तो वो अल्लाह, ईश्वर और गॉड को एक ही मानते हैं। तो इनका सवाल है कि गांधी के राम को हम कैसे परिभाषित करेंगे। नहीं, गांधी जी जब राम की बात करते हैं तो अविभाज्य समग्रता की ही बात करते हैं एक्चुअली, और उसको डिफरेंट नामों से हम पुकारते हैं। मुसलमान या इस्लाम के जो ब्रदर हैं वो अल्लाह कहते हैं, या इंग्लिश में जो गॉड वर्ड आया है, या हमारे यहाँ जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, दाता है। लेकिन जब भगवान जो गांधी जब राम की बात करते हैं तो राम का उनका अर्थ अविभाज्य समग्रता ही है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर है और जो भगवान का, जो ईश्वर का सिंबॉलिक है और उनके आधार पर कम है, उसके आधार पर जो राम राज्य है, और वो राम राज्य कि जिसमें वो गांधी जी खुद कहते हैं कि एक कुत्ते को भी इंसाफ मिला है, तो इट वाज अल्टीमेटली ए किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये गांधी जी ने खुद एक्सप्लेन किया है, राम राज्य किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो उसमें अंतर नहीं है। राम तो उनका जो है वो उसी ईश्वर का, उसी परमात्मा, उसी ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब उसका करते हैं ईश्वर का, तो फिर वो डिफरेंट नेम से ही है ना भाई। आपके इस्लाम में अल्लाह आ गया, खुदा आ गया, क्रिश्चियनिटी में गॉड आ गया, या आपके ये जो आपके पारसीज में अहरा मजदा आ गया, तो थिंग इज द सेम। मैं आदरणीय सुज्ञान मोदी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार कुछ साझा करें। जी हेलो जी, अब नमस्कार। आवाज आ रही है? जी जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई और मन बहुत प्रसन्न हुआ। पिछली बार भी मैंने सुना था, तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। 1-2 मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा कि अगर हम गांधी जी के समग्र धार्मिक चिंतन को सनातन धर्म के साथ में देखना चाहें, तो मूल में हमें यह देखना पड़ेगा कि गांधी जी पे जिनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो थे श्रीमद राजचंद्र, लियो टॉल्स्टॉय, जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की। मोहनदास में किशोरावस्था से ही एक विशेष प्रवृत्ति देखी जा सकती थी, वह थी जीवन और जगत के सत्य को एक तटस्थ जिज्ञासु की तरह जानने और समझने की प्रवृत्ति। यह बात उनके धर्म और अध्यात्म विषयक जिज्ञासाओं पर भी लागू होती है। अंत में मुझे स्मरण आता है गांधी जी का एक वक्तव्य, उसकी 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। गांधी जी ने 21 नवंबर 1947 को प्रार्थना प्रवचन में जो बात कही उसे हम यहाँ पे स्मरण कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा, सनातन धर्म रूपी भारत के उदात्त धार्मिक परंपरा के प्रवाह का हिस्सा ही हिंदू धर्म भी है, ऐसा गांधी जी मानते भी थे। गांधी जी आगे कहते हैं, ये सब इस वक्त के लिए योग्य सवाल है। मैं इतिहास का कोई बड़ा जानकार नहीं हूं, मैं विद्वान होने का दावा भी नहीं करता, मगर हिंदुत्व पर लिखी हुई किसी प्रमाणिक किताब में मैंने पढ़ा है कि हिंदू सब वेदों में नहीं है। जब सिकंदर महान ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की, तब सिंधु नदी के पूर्व के देश में रहने वाले लोग, जिसे अंग्रेजी हिंदुस्तानी इंडस कहते थे, हिंदू के नाम से पुकारे गए। सिंधु का स
ग्रीक भाषा में ह हो गया। इस देश के रहने वालों का धर्म हिंदू धर्म कहलाया और जैसा कि आप लोग जानते हैं यह सबसे ज्यादा सहिष्णु धर्म है। इसने उन ईसाइयों का आश्रय दिया जो विधर्मियों से सदैव जाकर भागे थे। इसके सिवा इसने उन यहूदियों का भी बेन इजराइल कहे जाते हैं और पारसियों को भी आश्रय दिया। मैं हिंदू धर्म का सदस्य होने में अभिमान महसूस करता हूँ, जिसमें सभी धर्म शामिल हैं और जो बड़ा सहनशील है। आर्य विद्वान वैदिक धर्म को मानते थे। हिंदुस्तान पहले आर्यावर्त कहा जाता था, वह फिर से आर्यावर्त कहलाए ऐसे मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी कल्पना का हिंदू धर्म, गांधी जी कहते हैं, मेरी कल्पना का हिंदू धर्म मेरे लिए अपने आप में पूर्ण है। बेशक उसमें वेद शामिल है मगर उसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। यह कहने में मुझे कोई मुनासिब बात नहीं मालूम होती कि हिंदू धर्म की महत्ता को किसी भी तरह कम किए बगैर में मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म में जो महत्ता है उसके प्रति हिंदू धर्म के बराबरी श्रद्धा जाहिर कर सकता हूँ। ऐसा हिंदू धर्म तब तक जिंदा रहेगा जब तक आकाश में सूरज चमकता है। गांधी जी ने आगे कहा है, इस बात को तुलसीदास ने एक दोहे में रख दिया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो आखिर में तो ये समझ में आता है कि मत संप्रदाय के रूप में हम धर्म का कुछ भी नाम रखें, असल धर्म तो गांधी की दृष्टि में और सभी संतों की दृष्टि में दया, क्षमा, सत्य, प्रेम और करुणा को जीवन व्यवहार में आत्मसात करना ही है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका सुज्ञान जी। आपने बहुत बखूबी तरीके से करुणा, क्योंकि बिना करुणा के धर्म की संभावना और धर्म का जो प्रयास है समाज का निर्माण करने का, हार्मोनी फैलाने का, वो असंभव लगेगा। और इसीलिए गॉड इज ट्रूथ और ट्रूथ इज गॉड और गॉड इज लव और ट्रूथ इज लव। तो बहुत अच्छा आपका। प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? और जी प्रोफेसर हेलो जी, आवाज आ रही है आपके पास? मुझे जी आ रही है। जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं सुज्ञान जो मोदी जी के वक्तव्य में? नहीं, बिल्कुल जो बात इन्होंने कही है, हाँ, जो बात इन्होंने कही है वो बिल्कुल बात ठीक है। और ये सही है कि मूल तो सनातन धर्म ही है, और सनातन धर्म है, चूंकि वेदों ने व्याख्या की तो उसको वैदिक धर्म भी हम कहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म ये बाद में आया, और मेरा भी एक ये विश्वास है, जो मेरा अपना शोध है और जो मेरा कार्य है वो मेरा भी एक अपना यही विश्वास है कि ये जो शब्द है ये सिंधु नदी से आया है। और चूंकि जैसे इंडिया है तो इंडस कहा है यूनानियों ने, और ऐसे ही जो आपके पर्शियन से शब्द ये हिंदू आया है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सनातन धर्म है मेन बात, और जो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म चूंकि शाश्वत धर्म है, तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और गांधी जी भी सही कहते हैं कि जब तक ये क्योंकि सत्य है, सनातन का मतलब सदा स्थायी रहने वाला है। तो जब तक वो कहते हैं कि सूरज चांद रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, तो हिंदू आपके जो आज जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं प्रचलित भाषा में दुनिया में, जो हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तव में जो सनातन धर्म है तो उसका परचम लहराता रहेगा। और सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो तो फहराती रहेगी। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया उसको। बहुत आभार। और मित्रों, अब वोट ऑफ थैंक्स का समय हो चुका है, लेकिन हम लोग एक प्रार्थना के साथ विदा लेना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन करेंगे कि ये जो प्रार्थना है इसको आप सुने, और गांधीयन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म की तरफ से प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी का उद्बोधन हमारे लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और प्रोफेसर आनंद कुमार का मार्गदर्शन
और आज से ये भी एक बात पता चल गया कि प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी हमें आगे भी अपने ज्ञान से मार्गदर्शन करने का मौका देते रहेंगे। तो मैं अब आज की प्रार्थना को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल तन्मयता के साथ इस प्रार्थना को सुने और आपसे फिर विदा लूंगा। सृष्टिकर्ता परम आत्मा शांति दे और प्यार दे। थक जाता है जब मेरा मन, ठिठुरता है जाड़े में। जीवन का जाल बुना है तुमने, हम तो उसके बस धागे हैं। इसकी क्षति की अगर तो अपनी ही क्षति करते हैं। ले जा असत्य से सत्य के प्रति, ले जा तम से ज्योति के प्रति, मृत्यु से ले जा अमरत्व के प्रति। चले साथ और बोले साथ, दिल से दिल मिल जिए साथ। वैश्या ही कहलाऊंगी मैं तो, एक वैश्या हूँ और वैश्या ही कहलाऊंगी, जिसमें बेच कर ही खुद को जिंदा रखा। ईमान खरीद भोजन जन के हृदय समान, सबके मन में भाव समान। निश्चय सम हो कार्य समान। क्षमा मैं चाहता सबसे, मैं भी सबको करूं क्षमा। मैत्री मेरी सभी से हो, किसी से बैर हो नहीं। जीतो अक्रोध से क्रोध, साधुत्व से असाधु, कंजूसी राग से जीतो, सत्य से झूठवादी को। वैर से ना कदापि भी मिटते वैर है कहीं, मैत्री जी से मिटे वैर, यही धर्म सनातन। दयावान को करो प्रणाम, कृपावान को करो प्रणाम। विश्व सकल का मालिक तू, अंतिम दिन का चालक तू। तेरी इबादत करूं सदा, तेरी मदद चाहूं सदा। दिखा हमें तू सीधी राह, तेरी जिन पर रहम निगाह। ऐसों को जो सीधी राह, दिखा हमें वो सीधी राह। जिन पर करता है तू क्रोध, भ्रमित हुए हैं या गुमराह। उनके पथ का लूं नहीं नाम, दयावान को करूं प्रणाम, कृपावान को करूं प्रणाम। शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे। हो तिरस्कार जहाँ करूँ स्नेह, हो हमला तो क्षमा करूँ मैं। हो जहाँ भेद अभेद करूँ,
हो जहाँ भूल मैं सत्य करूं। हो संदेह वहाँ विश्वास, घोर निराश वहाँ करूँ आस। हो अंधियार वहाँ पे प्रकाश, हो जहाँ दुख वहाँ करूँ हास। शांति का वाद्य बना तू मुझे, शांति का वाद्य बना तू मुझे, शांति का वाद्य बना तू मुझे, प्रभु शांति का वाद्य बना तू मुझे। वो केवल एक है, सर्व में है, अनंत है, उसका नाम सच है, सब कुछ करने वाला है। भय से रहित है, वैर से रहित है, मूरत से रहित है, जन्म मरण से परे है, स्वयं है, गुरु की कृपा से मिलता है। हे प्रभु तू उत्तमोत्तम धर्म संदेशा सुना, डाकिने की राह चल मैं तेरी महिमा गा सकूं। चाहता है जिस मुताबिक उस मुताबिक तू चला, जिंदगी की ताजगी के स्वर्ग सुख को पा सकूं, स्वर्ग सुख को पा सकूं। धन्य प्रभु है नाम तिहारा, नित्य निरंतर सांझ सवेरा, सारे जग से है तू अपार, स्वर्ग से कीर्ति तेरी गुरुतर, सारे जग से है तू अपार, स्वर्ग से कीर्ति तेरी गुरुतर। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह, शरीर श्रम स्वाद सर्वत्र भयवर्जन, सर्वधर्म समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना, विनम्र व्रत निष्ठा से ये एकादश सेव्य है। शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ, अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे।